गुलजार एंड राखी, एन इटर्नल रोमांटिक, तावीज़ बना के पहनूं उसे, आयत की तरह मिल जाए कहीं, मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही, एन इनोसेंट आशिक, तेरी मेरी अट्टी बट्टी, दांत से काटे कट्टी, वॉन्टनली एमरस, तेरे गहरे बदन में सिल जाऊंगी रे, जब करवट लेगा तू छिल जाऊंगी रे. But marriage with Mary Bangalan, as he fondly called Rakhi, was, in his words, the longest short story of my life. Much later, his daughter Boski would expose his true feelings. शहर की बिजली गई, बंद कमरे में बहुत देर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया. तुम गई थी जिस दिन, उस रोज़ भी ऐसे ही हुआ था. Gulzar and Boski. He writes of Boski. बोस्की ब्याहने का समय अब करीब आने लगा है. जिस्म से छूट रहा है कुछ कुछ, रूह में डूब रहा है कुछ कुछ. कुछ उदासी है, सुकून भी. वो किसी और तरफ मुड़ के चली जाएगी उगते हुए सूरज की तरफ, और मैं सीधा ही कुछ दूर अकेला जाकर शाम के दूसरे सूरज में समा जाऊंगा. Gulzar and Rabindranath Tagore. A young Gulzar would borrow books of any kind, cheap thrillers, detective tales, history, philosophy, from a refugee who rented books by the kilo and who was fed up of this insatiable child. One day, Gulzar was handed over Rabindranath Tagore's work, Gardener. Rabindranath Tagore changed my life. My first nazm was Gurudev's Mali. After that, my pattern of reading changed. Incidentally, Gulzar Saab never returned the book. He still has it. He idolized Rabindranath, Gurudev Tagore. I too scribble and cross things out while I'm writing. I also sketch, like Gurudev Tagore. Later, this half Bengali or Bengal son-in-law, as he fondly calls himself, would pay a debt to his Gurudev by translating his poetry. बाल अगर बिखरे हैं, सीधी मांग नहीं निकली, बांधे नहीं अंगिया के फीते, तो कोई बात नहीं, जैसी हो वैसे ही आ जाओ, सिंगार को रहने दो. Gulzar adds, but translations didn't do justice to his work, because translation is like a mistress. If it's beautiful, it's not faithful. And if it's faithful, it is not beautiful. Gulzar and Amrita Pritam. Do you remember Tumhari Amrita? Multiple stage shows on the Punjabi poetess, painter Amrita. Our Sardar Munda was deeply fascinated by everything Amrita. Her style of work, her smoking, her life, her paintings. After her death, he cut albums, arranged plays, gave live recitals of Amrita's poetry, making her famous outside of Punjab, taking no credit except saying his contribution was like putting dal ke upar jeera. Yet acknowledging his writing to have been deeply influenced by Amrita Pritam. If Amrita wrote of a painting, मैं तेनू फेर मिलांगी, शायद तेरे तखयुल दी चनाक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी. तखयुल दी चनाक इज़ अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन. शायद तेरे तखयुल दी चनाक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, खरे सूरज दी लू बन के तेरे रंगां विच खुलांगी, या रंगां दियां बावां विच बह के तेरे कैनवस नू वलांगी. I will sit in the arms of colors and I will color your canvas. And Gulzar would write, एक ताज़ा सफ़ेद कैनवस पर आतिशी सुर्ख रंगों से मैंने रोशन किया था एक सूरज. सुबह तक जल चुका था वो कैनवस और राख बिखरी हुई थी कमरे में. इफ़ अमृता रोट ऑफ सिगरेट्स, एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया. सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने
राख की तरह झाड़ी। गुलजार वुड राइट, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। और better still, what he wrote as a statutory warning for his film मातृ की बिजली का मंडोला। सिगरेट के धुएं से देखो फेफड़े जल जाएंगे, सिगरेट के धुएं से देखो फेफड़े जल जाएंगे, खामखा उम्र के थोड़े साल गल जाएंगे। Another of his major influences was Ghalib. His poems, lifestyle, behavior, everything are a great inspiration to me, says the man who wrote, produced, and aired 17 episodes on Mirza Ghalib on national television and several other programs later on. He followed it up with Tera Bayan Ghalib, a journey through the letters and works of Ghalib recited by himself. A crazy fan, he even commissioned a bust of Ghalib on his 214th anniversary for himself and gave it pride of place in his drawing room. जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। गालिब का मिसरा और गुलजार ने हिट सॉन्ग बना दिया एंड ही ब्रॉट इट टू द मासेस विद दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। He used another famous शेर as a haunting refrain in the background score of the film दिल से in the song सतरंगी रे। याद होगा आपको, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब के लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। कहा उन्होंने मिसरा गालिब का है और कैफियत हर एक की अपनी अपनी। कैफियत का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, विवरण। मिसरा गालिब का है और कैफियत हर एक की अपनी अपनी। गुलजार एंड मीना कुमारी, इनका रिश्ता तो मीना जी के शेर में इनकैप्सुलेटेड था। जिंदगी आ बैठ, ज़रा बात तो सुन, मोहब्बत कर बैठे हैं, कोई मशवरा तो दे। A broken Meena Kumari sought solace in poetry, liquor, and young fan Gulzar, exchanging poems, reciting ghazals. He kept Rosa for her health, and she bequeathed her prized collection of colored stones and diaries to him. Yet again, he would bring his idol's works to the world. Some excerpts he used in works Ravi Par and Dhuan, some he published as Meena Kumari ki Shairi, and some he kept. गुलजार एंड R.D. बर्मन, पंचम, तुम्हारे एक दिल की धड़कन बंद हुई और तुम लाखों दिलों में धड़कने लगे। बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुम्हारे मरफत मुझे याद करते हैं और मैं तुम्हारी मरफत उनसे बात करता हूँ। वो मुझे तुम्हारा सगा दोस्त समझते हैं क्योंकि मेरा दिल अब भी तुम्हारी ताल पे धड़कता है। आई मिस पंचम, पंचम वुड से कोई बोल दे दे यार, धुन खो जाएगी। येट व्हेन आई रोट मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा सामान मुझे लौटा दे, बिगड़ गया। ही रिफ्यूज्ड। व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग इज दिस? टुमारो यू विल ब्रिंग सम कटिंग्स फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड आस्क मी टू कंपोज सम म्यूजिक ऑन इट। आज समय नहीं है, वरना इस गाने के पीछे की दास्तान और भी है। गुलजार एंड जगजीत सिंह, गुलजार लिखते हैं, जगजीत गज़ल नहीं गाते थे, गज़ल जगजीत को गवाती थी, तो बड़ा मुश्किल है उनकी जगह किसी और का आना। गुलजार used his Triveni style for the first time for his works with जगजीत सिंह। न जाने उंगली छुड़ाकर निकल गया है किधर, बहुत कहा था ज़माने से साथ साथ चले, है इंतज़ार के आँखों से कोई बात चले, है इंतज़ार आँखों से कोई बात चले, नज़र उठाओ ज़रा तुम के कायनात चले। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, गुलजार एंड मेहंदी हसन। गुलजार साहब आइडलाइज्ड मेहंदी हसन।
वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इन सब के बारे में, बट इट हैज़ बीन माई कॉन्शियस एफर्ट्स टू कीप इट शॉर्ट सो दैट आई कैन acquaint you with the various facets of his life. He idolized मेहंदी हसन और लिखते हैं, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद नहीं होती, बंद आँखों से रोज़ चले जाता हूँ मैं, बंद आँखों से रोज़ चले जाता हूँ मैं मेहंदी से मिलने. गुलजार एंड